السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کا موضوع ہے ہند آریائی کی مختصر تاریخ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یوٹیوب پر اردو ادب سے متعلق ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ UGC نیٹ کے نئے سلیبس کے مطابق مواد کو مہیا کروائیں اور اس سے ریلیٹڈ ہی ہم ویڈیو بنائیں۔ تو اپنی اس کوشش کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج یونٹ 1 سے ہم جو ہے ہند آریائی کی مختصر تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ UGC نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے اور آپ اسے دیکھیں، اور اگر ہماری یہ کوشش پسند آئے تو اپنے دوستوں تک بھی اسے شیئر کریں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یونٹ 1 ہند آریائی کے مختصر تاریخ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہند آریائی کی مختصر تاریخ زبان کے سلسلے میں کچھ ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہند آریائی کی دھیرے دھیرے ہم آگے ان کی تاریخ پر بڑھیں گے۔ زبان کیا ہوتا ہے؟ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے جس صوتی اور لفظی وسیلے کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو زبان کے اندر دونوں چیز ہوتی ہے، صوت اور لفظ اس کی ایک حیت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے، وہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ اپنے جذبات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جس صوتی اور لفظی وسیلے کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم زبان کہتے ہیں۔ زبان کی تعریف۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے زبان کی یہ تعریف کی ہے کہ زبان آوازوں اور الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر آواز ہوتی ہیں اور الفاظ، تو آوازوں اور الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ گوپی چند نارنگ نے یہ تعریف کی ہے۔ اچھا، دوسری تعریف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے اپنے مضمون زبان کی حیت، آغاز و تشکیل میں کہا ہے کہ زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ کیا یہ زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے؟ یہ دو تعریف ہم نے لی ہے، ایک ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی اور دوسری جو گوپی چند نارنگ کی۔ خیر، آگے زبان کی دو مختلف صورتیں ہیں، ایک ظاہری صورت اور دوسری معنوی صورت ہے۔ زبان کی ظاہری و معنوی دونوں صورتوں میں تال میل اور ربط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لفظ کی ایک شکل ہے اور اس کا ایک معنی ہے، تو اس کے معنی اور اس کے لفظ کی ایک حیت دونوں میں تال میل ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آواز اپنی معنوی حیثیت کو الفاظ کے ذریعے پوری طرح ادا نہیں کر سکتی ہو تو زبان کا اصل مقصد یعنی ترسیل و ابلاغ کا عمل پورا نہیں ہوتا ہے نا۔ آگے زبان ایک زندہ حقیقت ہے جس میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے دوران بولیاں زبان میں تبدیل ہو جاتی ہیں یا پھر تغیرات زمانہ کے سبب زبان بولیوں کا روپ دھار لیتی ہیں۔ یہ دو طرح سے زبان کے اندر تبدیلی ہوتی ہیں۔ زبان کے لیے بولیاں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبان کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کے دوران کبھی کبھی جو چھوٹی چھوٹی بولیاں ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو کر کے بڑی حیت میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ زبان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور مرور زمانہ کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان جو تھیں وہ بولیوں کا روپ دھار لیتی ہیں نا، وہ چھوٹی شکل میں چلی جاتی ہیں، یا یہ کہ کہا جائے کہ ان کا جو گراف ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، بولنے والے کم ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات کم ہونے لگتے ہیں، زبان تنزلی کی طرف جانے لگتی ہے، تو وہ بولی کی شکل میں اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبان جو ہے اس کی ایک بڑی حیت ہے اور بولی اس کی چھوٹی حیت ہے۔ زبان اور بولی میں فرق یہ ہے کہ زبان کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں ادبی کام وغیرہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن بولی کا دائرہ جو ہے یہ محدود ہوتا ہے۔ تو زبان اور بولی کے اندر یہ فرق ہے۔ یہ ایک لسانی حقیقت ہے کہ زبان کی تشکیل میں بولیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ زبان اسی وقت بنتی ہے جب وہ بولی کی شکل میں تشکیل پاتی ہے، پھر وہ ترقی کرتے زبان کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ زبان کی ہم نے تھوڑی سی تعریف اور تھوڑی سی بات کر لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ زبان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے زبان میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک زبان دوسری زبان سے کبھی مختلف ہوتی ہے تو کبھی ان میں اشتراک ہوتا ہے اور کبھی یکسانیت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ان میں یا تو وہ دو زبانیں جو ہوں گی ان میں آپس میں اختلاف ہوگا، یا ان میں کسی حد تک اشتراک ہوگا، یا بالکل ہی یکسانیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ہے اختلاف کی وجہ سے، اسی وجہ سے زبان کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، دنیا میں زبانوں کو 8 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان میں سب سے بڑا خاندان ہند یورپی خاندان ہے۔ بات یہاں آئی کہ زبان کی ہند یورپی خاندان جو ہے زبان کے
سب سے دنیا میں جتنی بھی زبان کے خاندان ہیں ان میں سب سے بڑا خاندان ہند یورپی خاندان ہے، اور ہند آریائی ہند یورپی سے ہی نکل کر آیا، یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو اس میں جو ہمارے پوائنٹس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا گیا؟ 8 بڑے خاندانوں میں، ان میں سب سے بڑا خاندان کون ہے؟ ہند یورپی خاندان ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہندوستان میں ہند یورپی خاندان کا سلسلہ بہت بڑا ہے، اور یہ ارتقائی منزل چڑھتا ہوا ہند ایرانی بنتا ہے، یعنی ہند یورپی سے جب یہ آگے بڑھتا ہے ترقی کرتے ہوئے تو پھر یہ کیا بنتا ہے؟ ہند ایرانی بن جاتا ہے، اور پھر ہند ایرانی سے ترقی کرتے ہوئے یہ ہند آریائی بن جاتا ہے۔ یہ اس کی ترقی کے منازل ہیں، ہے نا، آپ اسے یاد رکھیں۔ ہند یورپی سے ترقی کر کے ہند ایرانی، پھر ہند ایرانی سے آگے ہند آریائی۔ پھر ہند آریائی زبان کا ارتقا بھی 3 ادوار میں ہوتا ہے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ ٹھیک ہے، ہم نے مختصر اجمالاً چیزیں یہاں پہ لی ہیں، اب دیکھیں تھوڑا سا آگے تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں ہند یورپی زبانوں کا سلسلہ تقریباً 3500 قبل مسیح سے ملتا ہے، یعنی ہند یورپی زبان کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ 3500 قبل مسیح سے۔ پھر جب یہ ہند یورپی زبانیں ترقی کرتی ہوئی 2000 قبل مسیح پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہند ایرانی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو 2000 قبل مسیح اس کا نام ہند ایرانی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہند یورپی زبانوں میں سے ہند ایرانی کو سب سے قدیم اور اہم مانا جاتا ہے۔ جتنی بھی ہند یورپی زبانوں کے اندر جتنے بھی زبانیں ہیں ان میں سے ہند ایرانی کو سب سے قدیم اور اہم مانا جاتا ہے۔ ان زبان کے سلسلے میں ہند ایرانی کو سب سے قدیم اور اہم مانا جاتا ہے، زبان اور ادب دونوں حیثیت سے، چونکہ ہند ایرانی زبان جو ہے یہ زبانی کی حیثیت سے بھی اور ادب کی حیثیت سے بھی ادبی کام بھی اس کے اندر ہوئے ہوں گے، تو اس حیثیت سے اس کو اہم مانا جاتا ہے۔ پھر ہند ایرانی آگے بڑھ کر کے 3 شکلیں اختیار کرتی ہیں، کیسے؟ ایک زبان کا وہ گروہ جو ایران میں مقیم رہا، یعنی ہند ایرانی زبان کا وہ شاخ یا اس کی وہ شاخ جو ایران میں مقیم رہی، وہ اس سے ایرانی زبان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو کشمیر اور اس کے آس پاس چلے گئے، وہاں آباد ہوئے، وہاں یہ زبانیں بولے جانے لگی، تو اس سے ایک پشاجہ زبانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر جب وہ لوگ وسطی ایشیا سے آریائیوں کا گروپ اپنے لسانی ورثہ کے ساتھ ہندوستان آیا تو اسے ہند ایرانی زبان کا سلسلہ شروع ہوا، ہند آریائی زبان کا سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ہند ایرانی آگے چل کے پھر 3 شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ہند ایرانی زبان بولنے والے جو لوگ تھے وہ لوگ جب دوسرے جگہوں پر شفٹ ہونے لگے یا یہ کہ ہجرت کرنے لگے، جانے لگے، تو وہ لوگ جو ایران کے علاقے میں مقیم رہے انہوں نے جس زبان کو بولا اسے ایرانی زبان کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ لوگ جو کشمیر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آباد ہو گئے ان سے پشاجہ زبانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر جب وسطی ایشیا سے آریاؤں کا گروپ ہندوستان آیا اور یہاں جو پھر زبان پلی بڑھی، اس سے جو ہے آریاؤں کے آمد کی وجہ سے جو ہند آریائی زبان کا آغاز ہوا۔ تو اس طریقے سے ہند ایرانی جو ہے پھر 3 شاخوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس سے 3 شکلیں نکلتی ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ آریا کون تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں کئی لوگوں کے کئی خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض مورخین آریا کو خانہ بدوش کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا تھے؟ خانہ بدوش لوگ تھے۔ اور بقول بعض آریا تبت سے آئے تھے، کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تبتین تھے جو تبت سے ہندوستان آئے تھے۔ اور بعض سنسکرت کے عالموں کا خیال ہے کہ آریا ہندوستانی ہی تھے، ہندوستان کے ہی رہنے والے تھے، ہندوستان کے دوسرے علاقے کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ آریا وسطی ایشیا سے آئے تھے، سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جنوب مغربی روس کے علاقے سے چل کر عراق، ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے تھے، یہ آریا، ٹھیک ہے۔ آریا چنانچہ اسی بیچ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد ہوتی ہے، کبھی آمد ہوتی ہے، اور ان کی آمد کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 1500 قبل مسیح طے کیا تھا۔ اب یہ جو زمانہ لکھا گیا ہے یہ ایک اندازن ہے جو محققین کے درمیان متفق علیہ ہے، جو مورخین ہیں انہوں نے اتفاقی طور پہ ایک فگر مان لیا کہ 1500 قبل مسیح ان کا ایک زمانہ متعین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1500 قبل مسیح آریاؤں کی آمد یہاں ہندوستان میں ہوتی ہے۔ آریاؤں کے ساتھ جو زبان آئی اس پہ ہندوستان کی قدیم زبانوں کا کافی اثر پڑا، اور آریائی زبان
हिंद ईरानी ज़ुबान के मरहले से तरक्की करते हुए हिंद आर्याई ज़ुबान की शक्ल अख्तियार कर लेती है, क्योंकि आर्या जो आए होंगे उनके साथ अपनी ज़ुबान, उनका अपना तहज़ीब, अपनी तहज़ीब और सक़ाफ़त उनके साथ रही होगी। फिर हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान की जो इलाक़ाई ज़ुबानें और यहाँ की जो तहज़ीब थी वो, ये दोनों जब मिली, यहाँ की ज़ुबानें और आर्या के साथ आई हुई ज़ुबानें जब ये आपस में मिली तो ये धीरे धीरे तरक्की करते हुए जब आगे बढ़ी तो फिर इनका नाम हिंद आर्याई ज़ुबान पड़ गया। ठीक है, तो हम आगे इसको देख लेते हैं कि हिंद यूरोपीय ज़ुबान का सिलसिला कब से शुरू होता है? 1500 क़ब्ल मसीह से। हिंद ईरानी ज़ुबान कब बना? 2000 क़ब्ल मसीह। फिर उसके बाद 2000 से जब और पीछे आते हैं तो 1500 के आसपास जो है तकरीबन आर्या जो है हिंदुस्तान आते हैं। जब हिंदुस्तान आने के बाद ये लोग यहाँ रहने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे कर करके ये हिंद आर्याई ज़ुबान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो 1500 क़ब्ल मसीह के बाद के दौरों में जो है हिंद आर्याई ज़ुबान की जो है वजूद होता है। ठीक है, हाँ, हिंद आर्याई ज़ुबान की को भी 3 अदवार में तकसीम किया गया है। हिंद आर्याई का ज़माना 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक। तो 1500 से 500 क़ब्ल मसीह तक का जो ज़माना है ये इसे कदीम हिंद आर्याई ज़माना कहा जाता है। ठीक है, वस्ती हिंद आर्याई कब से शुरू होता है? 500 क़ब्ल मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो ज़माना है इसे हम वस्ती हिंद कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जदीद हिंद आर्याई जो है ये आपको 1000 से ईस्वी से लेकर के ताहाल अब तक का जो ज़माना चल रहा है ये जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान का ज़माना है। तो ये जो है कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक रहा है, ये इस सिलसिले में इसकी तारीख़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे कदीम हिंद आर्याई में क्या क्या चीज़ें थी, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, ये वेदों का ज़माना था, ये वैदिक पीरियड कहलाता है एक तरीके से। तो ये वेदों का ज़माना था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद कदीम हिंद आर्याई ज़ुबानों में मिलते हैं जो संस्कृत की बोली थी एक तरीके से, और वैदिक पीरियड कहलाता है कदीम हिंद आर्याई। फिर इससे आगे चलते हैं तो जब कदीम हिंद आर्याई के बाद वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना आता है तो वस्ती हिंद आर्याई को कितने दौर में तकसीम किया गया है? फिर एक तो पूरे हिंद आर्याई को 3 दौर में तकसीम किया गया है, उसके बाद मज़ीद वस्ती हिंद आर्याई को 3 दौर में तकसीम किया गया ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। 3 अदवार में वस्ती हिंद आर्याई को तकसीम किया गया है। पहला दौर 500 क़ब्ल मसीह से मसीही सन की इब्तदा तक, ये दौर पाली का कहलाता है। यानी वस्ती हिंद आर्याई में शुरू का जो है 500 क़ब्ल मसीह से लेकर के मसीही सन यानी ईस्वी के इब्तदा तक का जो दौर है ये दौर पाली का दौर कहलाता है। ठीक है, लफ्ज़ पाली के क्या माना है? तो लफ्ज़ पाली संस्कृत के लफ्ज़ पंक्ति से निकला है। ठीक है, पाली प्राकृत का पहला रूप है, यानी जो प्राकृत आगे चल करके वजूद में आता है तो उससे पहले पाली का वजूद होता है और उससे पहले पाली का रूप पाया जाता है। तो पाली प्राकृत का पहला रूप है और पाली ज़ुबान को हम कदीम मगधी भी कहते हैं। पाली का दूसरा नाम कदीम मगधी भी है और इसी पाली ज़ुबान में बुद्ध मत, जैन मत की तालीमात वगैरह मिलती हैं। तो गोया कि पहला दौर जो है ये 500 क़ब्ल मसीह से मसीही सन की इब्तदा तक जो कि पाली दौर कहलाता है ये है, और इसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती हैं और पाली को दूसरा नाम कदीम मगधी भी है। उसके बाद देखते हैं प्राकृत का आगाज़ कब से कब होगा, उसका दौर क्या है। ये प्राकृत जो है ये ध्यान रखें वस्ती हिंद आर्याई की तकसीम है। वस्ती हिंद आर्याई को 3 जगह तकसीम किया गया। तो पहला दौर उसका पाली है, दूसरा प्राकृत है और तीसरा अपभ्रंश है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि वस्ती हिंद आर्याई को कदीम हिंद आर्याई के अंदर तो ये वैदिक पीरियड है, उसका जो वस्ती हिंद आर्याई होता है उसमें पहला दौर पाली है, दूसरा प्राकृत है, तीसरा अपभ्रंश है। अब इनके ज़माने को ध्यान रखना है। तो ये पाली के बारे में बता दिया मैंने कि 500 क़ब्ल मसीह से मसीही सन के इब्तदा तक का दौर है। अब आते हैं प्राकृत पे, ये दूसरा दौर है। ये मसीही सन की इब्तदा से 500 ईस्वी तक का ज़माना है, ये दौर प्राकृत का कहलाता है। ठीक है, प्राकृत के क्या माना है? प्राकृत के माना ऐसी ज़ुबान जो अपनी फितरी अंदाज में फल फूल रही हो। तो यानी फितरी अंदाज में फलने फूलने वाली ज़ुबान को हम प्राकृत ज़ुबान कहते हैं। लेकिन प्राकृत किसी एक ज़ुबान का नाम नहीं है बल्कि कई ज़ुबानों के मजमूए का नाम है। प्राकृत में 5 ज़ुबानें वाज़ेह तौर पे शामिल हैं।
प्राकृत के अंदर कौन कौन सी? महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, इर्द मगधी और पिशाजी। तो ये भी सवाल हो सकता है कि प्राकृत की 5 ज़ुबानें, प्राकृत में कितनी ज़ुबानें शामिल हैं, कौन कौन सी? महाराष्ट्री, शोरसीनी, मगधी, इर्द मगधी और पिशाजी। ठीक है, तो ये प्राकृत दौर कहलाता है। आगे जब उसका तीसरा दौर है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का दौर है, ये अपभ्रंश का दौर कहलाता है। ठीक है, और अपभ्रंश के क्या माना है? अपभ्रंश के माना है बिगड़ी हुई जुबान के, यानी प्राकृत की जो बोली थी जब वो बिगड़ने लगी तो वो बिगड़ करके अपभ्रंश की शक्ल अख्तियार कर लेती है। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ से कि वस्ती हिंद आर्याई को 3 दौर में तकसीम किया गया है। उसका पहला दौर पाली का है, दूसरा प्राकृत है और तीसरा अपभ्रंश है। आगे हिंदुस्तान में जदीद ज़ुबानों की जो पैदाइश हुई है ये प्राकृतों से नहीं हुई है बल्कि अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, और उनमें से शोरसीनी अपभ्रंश सबसे मुमताज़ हैसियत रखती है, क्योंकि अपभ्रंश की कितनी किस्में हैं? अपभ्रंश की भी यहाँ 4 किस्में हैं, शोरसीनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, इर्द मगधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। शोरसीनी, मगधी, इर्द मगधी और महाराष्ट्री ये सारी जो ज़ुबान थी ये जब बिगड़ी तो फिर इनसे अपभ्रंश का आगाज़ होता है। तो ये सारे अपभ्रंश हैं ज़ुबानें, शोरसीनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, इर्द मगधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। इनमें जो है ये शोरसीनी अपभ्रंश सबसे अहम है और इससे ही जदीद ज़ुबानों का आगाज़ होता है। ठीक है, आगे अब शोरसीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? शोरसीनी अपभ्रंश में 4 बोलियां शामिल हैं, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी जिसे हम मौजूदा उर्दू या हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये शोरसीनी अपभ्रंश से निकली है। दूसरा राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती, ये 4 बोलियां जो हैं शोरसीनी अपभ्रंश के अंदर शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है? ये तो हो गया वस्ती हिंद आर्याई के बारे में। जदीद हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई का ज़माना 1000 ईस्वी से ताहाल है, अब तक का जो ज़माना ये जदीद हिंद आर्याई आता है। ठीक है, जदीद हिंद आर्याई से ताल्लुक़ रखने वाले कई शाखें हैं, जिनमें से एक मगरबी जदीद हिंद आर्याई की जो ज़ुबान है उनसे कई शाखें जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हीं में एक शाख मगरबी हिंदी की भी है और उस शाख में 5 बोलियाँ शामिल हैं। मगरबी हिंदी में 5 बोलियाँ शामिल हैं और खड़ी बोली उसी शाख की एक बोली है। तो देखा जाए जदीद हिंद आर्याई की कई शाखें हैं, उनमें से एक शाख उसकी क्या है? मगरबी हिंदी है। मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, उन बोलियों में खड़ी बोली भी शामिल है। उसी खड़ी बोली पे उर्दू और हिंदी की बुनियादें कायम हैं। ठीक है, आगे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को 7 मुख्तलिफ इलाक़ों में तकसीम किया है। जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों को कितने इलाक़ों में? 7 मुख्तलिफ इलाक़ों में तकसीम किया है। सिंधी, लहिंदा, सिंधी के इलाक़े में लहिंदा, ये मगरबी पंजाब की ज़ुबान है। ठीक है, इसके क़वायद और फ़रहंग सब मशरक़ी पंजाब से मुख्तलिफ हैं। इसका अपना रस्मुल ख़त है जिसे लंडा कहते हैं। लेकिन ये अमूमन फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखा जाता है लहिंदा। ठीक है, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी और मगरबी हिंदी, तो ये 7 मुख्तलिफ इलाक़ों में, सिंध के इलाक़े में, लहिंदा मगरबी पंजाब के इलाक़े की ज़ुबान, पंजाबी पंजाब में, गुजराती गुजरात, राजस्थानी और मगरबी हिंदी। ठीक है, ये 7 इलाक़ों में सुनीति कुमार चटर्जी ने जदीद आर्याई ज़ुबानों को तकसीम किया। किसको? जदीद आर्याई ज़ुबानों को 7 इलाक़ों में तकसीम किया है। ठीक है, मगरबी हिंदी और ये आगे मशरक़ी हिंदी, मगरब के इलाक़े में मगरबी हिंदी और मशरक़ी इलाक़े में मशरक़ी हिंदी। ठीक है, आगे पंजाब, अब यहाँ पे हम कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। पंजाबी किन 3 रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? यानी ये सवाल है कि पंजाबी कितने रस्मुल ख़त में लिखी जाती हैं, इस तरह भी सवाल हो सकता है। तो जवाब ये है कि 3 रस्मुल ख़त फ़ारसी, गुरमुखी और देवनागरी में लिखी जाती है। तो पंजाबी को 3 रस्मुल ख़त में लिखा जा सकता है, फ़ारसी, गुरमुखी और देवनागरी, ये तीनों रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। ठीक है, मगरबी हिंदी कौन सी ज़ुबान है? वो बात आई थी ना मगरबी हिंदी और मशरक़ी हिंदी, तो मगरबी हिंदी कौन सी ज़ुबान है? अहद वस्ता में मगरबी हिंदी को शोरसीनी प्राकृत, जिसका मरकज़ मैथुरा था, अहद वस्ता में मगरबी यूपी की शोरसीनी प्राकृत
शोरशीन का जो मथुरा का इलाका था, उस इलाके की जो ज़ुबान थी उसको मगरबी यूपी, है ना, आधे वस्ता में मगरबी यूपी की शोरशीनी प्राकृत जिसका मरकज़ मथुरा था, उसने अदबी और मयारी ज़ुबान की हैसियत हासिल कर ली। बाद में वही शोरशीन प्राकृत बदल कर शोरशीनी अपभ्रंश की शक्ल अख्तियार कर गई। फिर जब 1000 ईस्वी में तुर्क पंजाब के रास्ते से दाखिल हुए तो उस वक्त शोरशीनी अपभ्रंश उरूज पर थी और उसने अदबी शक्ल अख्तियार कर ली। फिर बाद में ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी ने उसी को मगरबी हिंदी का नाम दिया। इसका मगरबी हिंदी का। तो सीधी सी बात ये कही जा सकती है कि मथुरा के आसपास इलाके में जो बोले जाने वाली ज़ुबान थी उस इलाके को मगरबी हिंदी का नाम दिया गया। ठीक है, मगरबी यूपी ये कहा जा सकता है कि मगरबी यूपी और मथुरा के आसपास के इलाके की जो ज़ुबान थी जो बोली जाती थी, उस ज़ुबान को या उस इलाके की ज़ुबान को मगरबी हिंदी का नाम दिया गया। ठीक, आगे मगरबी हिंदी की दर्ज झेल बोलियाँ, मगरबी हिंदी में दर्ज झेल बोलियाँ शामिल हैं। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये 5 बोलियां जो हैं हरियाणी मगरबी हिंदी के अंदर शामिल है। खड़ी बोली की बात ही आई तो मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की खड़ी बोली मयारी समझी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हरियाणवी को हम बांगड़ू या जाटू भी कहते हैं। हरियाणवी ज़ुबान की पहली तस्नीफ का नाम क्या है? गराइबुल लुगात है, जो अब्दुल वासे हांसवी की लिखी हुई है। किसकी है? अब्दुल वासे हांसवी की लिखी हुई है गराइबुल लुगात। ये हरियाणवी की पहली तस्नीफ है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिया कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। ठीक है, बस। और यहाँ पे कुछ 1-2 बातें हमने इधर से और शामिल कर दी हैं कि हरियाणवी को क्या कहते हैं और क्या नाम है, खड़ी बोली कि मयारी ज़ुबान किस इलाके की ज़ुबान को समझा जाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की बोली को खड़ी बोली को मयारी समझी जाती है। ठीक है, तो देखें आगे, ज़ुबान को माहिर लिसानियत 8 मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम किया, ये बात आ चुकी पहले। जनूबी हिंद की ज़ुबानें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सब दरावड़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये हिंद आर्याई ज़ुबान से या हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है। तो देख लें कि हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ हिंद यूरोपी ख़ानदान से नहीं है, ये दरावड़ी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। कौन? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, ये कुछ ज़ुबानें हैं जो जनूबी हिंद के अंदर बोली जाती हैं। आगे देखते हैं कुछ सवाल। कौन से ज़ुबान किस इलाके में बोली जाती थी? सवाल, शोरशीनी, इसका मरकज़ शोरशीन यानी मथुरा का इलाका था। मगधी, बात आई मगधी, इसका मरकज़ मगध यानी जनूबी बिहार का इलाका था। इर्द मगधी, इसके लफ्ज़ी माना आधी मगधी, इर्द के माना आधा, तो आधी मगधी, इसका मरकज़ जो है अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, शोरशीन मथुरा के इलाके में, मगधी जनूबी बिहार, इर्द मगधी ये आपको अवध और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के इलाके की जो ज़ुबान थी उसको इर्द मगधी कहा जाता था। नोट, मगरबी हिंदुस्तान के रहने वाले उसे, मगरबी हिंदुस्तान के जो रहने वाले थे उसे प्राच्या भी कहा करते थे। प्राच्या में मगधी और इर्द मगधी दोनों आ जाती है। ठीक है, जो मगरबी हिंदुस्तान के रहने वाले थे वो इसे प्राच्या भी क्या करते, तो मगधी और इर्द मगधी दोनों प्राच्या में शामिल हो जाती हैं, तो प्राच्या भी कहा जाता था उसे। आगे सवाल, पेशाजी के क्या माना है? पेशाजी लफ्ज़ संस्कृत में पेशाजी भूत को कहते हैं और पेशाजी के माना कच्चा गोश्त खाने वाले के भी बताए जाते हैं। तो पेशाजी के 2 माना बताएं, भूत के और कच्चा गोश्त खाने वाले के, ये भी है। आगे सवाल, अपभ्रंश का लफ्ज़ पहली बार कब और कहाँ इस्तेमाल किया गया? जवाब, अपभ्रंश का लफ्ज़ पहली बार भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि, है ना, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। उसके बाद कालिदास के विक्रम उर्वशी में नज़र आता है। तो ये लफ्ज़ अपभ्रंश का लफ्ज़ जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और कालिदास के विक्रम उर्वशी में सबसे पहली मर्तबा नज़र आया। लफ्ज़ अपभ्रंश के लिए संस्कृत में मलच का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मलच का लफ्ज़। अपभ्रंश को अपभाषा भी कहा
करते थे। क्या करते थे? अपभ्रंश को अपभाषा भी कहा करते थे। हिंदुस्तान की जदीद ज़ुबानों की पैदाइश प्राकृतों से हुई नहीं बल्कि अपभ्रंश से हुई है। तो ये सवाल हो सकता है कि जैसे हिंदुस्तान की जो जदीद ज़ुबानें हैं इनकी पैदाइश किससे हुई है, ये किससे निकल कर आई हैं, प्राकृत से, पाली से या अपभ्रंश से? तो यकीनी तौर पे वो अपभ्रंश से निकल कर आई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और उसमें हम कुछ और बातें हैं जो रह गए हैं डिस्कस करने के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही हो और ये आपके लिए मुफीद हो तो इंशाल्लाह आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, फिर जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।